Hello, everyone. Very good afternoon, all of you guys. Welcome to the Vedantu Commerce. This is me, Aditya Arya, your master teacher of mathematics and statistics. I hope, guys, you are doing really great in your life, and I wish so that you will do great in your life. Today, we are having this session so that we can discuss, obviously, my experience, and definitely, I want to tell you what exact problems that you are going to face in your examination so that if you know about the problems that you are going to face and if you will know that these problems are going to be create a bigger problem. And what is a bigger problem at the exam? It's getting the low marks, knowing everything but still getting the low marks, having a good preparation, getting the low marks. I know 80% of the syllabus, I can score 80% but getting the low marks. Then what I know, I can score 80% marks, but I'm getting 60% marks. I can score 70% marks, but I'm getting 50% marks. Lower than what you deserve. We will discuss all the problems which will create a bigger problem than getting what we deserve. I hope you all are interested. Yes, so that we can tackle these problems and before enter into the exam hall, we can tackle them perfectly. So let's discuss about this. But before we discuss, I have a very great notification for all you. And what is that notification? It's a scholarship examination. Let me put myself on the invisible on the screen. So guys, this is Vedantu Scholarship Admission Test. मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ. As the name suggests, it is conducted by Vedantu for the scholarship. This examination is basically gives you guaranteed scholarship from the pool of 10 plus crore rupees. Now, who is eligible for this? Anyone who is in the 4th grade till the 13th grade. Apart from this, what is the mode of the examination? It will be online mode. So anyone from anywhere can give this exam. The mode of exam will be objective test. Is it free? Yes. There is no charge. So basically, it's completely open for you. There is no barrier to attempt this test. The only barrier is your laziness. Sir, भूल गया मैं करना है ना. So we will not have this kind of live because it's a once. What my experience says ki grab the opportunity. Okay, grab opportunity. That's all. Whether we will rock in it or whether we will get shocked from it, it doesn't matter. Whether we will fail or whether we will pass, it does not matter. The very first step is grab the opportunity. So guys, this is going to be held on Sunday 7 p.m. and Wednesday 8 p.m. The link is given over here. You can register yourself at vsat.vedantu.com, vsat.vedantu.com. It's VSET 2021. That means every year we launch this exam. Last year we have also launched it. This year we are having also it. So guys, I hope everything it's clear about this. If you are having any kind of doubt, you can let me know in the comment box. Now let me put back myself on the screen. Okay, I'm back now. If you are preparing for your board examination, definitely you wanted to have the good marks. And guys, it's a last time. This is the last time that you are having an opportunity to grab again. And what is that opportunity? It's a crash course. Crash course is good for you to revise everything, to do multiple questions, to brush up your concepts and to gain the confidence before you enter into the examination. And crash course is also one of those courses where we tackle all these 5 problems. इन्हीं problems को tackle करना हम सीखते हैं यहाँ पर along with the revision of it. In crash course, we will do revision of all the concepts. We will do all the variety of the questions. We will practice on the question, and as it's a term one, so we will do multiple choice questions, a lot of multiple choice questions. And you will be having weekly tests. You will be having the assignments to do. So you practice enough before you enter into the examination. Now it's just 1 month, guys. एक महीना बचा है. तो इस एक महीने के अंदर आप जितना जोश के साथ इस एग्जाम की प्रिपरेशन में कूद सकते हो, कूद जाओ. सो दैट
पूरे साल नहीं पढ़े कोई बात नहीं, बट इस एक महीने में इतना पढ़ लेंगे, इतने अच्छे से तैयारी कर लेंगे कि पूरे एक साल की कसर निकल जाएगी। हाँ, तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, आप ग्रैब कर सकते हो। और एक और अपॉर्चुनिटी जो मैं आपको अपने साइड से देता हूं, दिस इज 55% ऑफ। तो अब ये ऑफ कैसे मिलेगा आपको, वो मैं आपको समझा दूंगा। एक कोड लगाना होता है ADAPRO, एक लिंक आपको मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो वो कोड लगाने पर, व्हाट इज दैट कोड, इट्स ADAPRO, आदित्य आर्या प्रो। तो वो कोड लगाने पर आपको ये ऑफ मिल जाएगा, 55% का ऑफ। CBSE कॉमर्स टर्म 1 क्रैश कोर्स फॉर क्लास 12, 10,000 का कोर्स होता है। देखो ये जो ऑफर है अभी दशहरा तक चलेगा, दशहरा के आसपास, तो कुछ दिनों के लिए है, उसके बाद ये रह जाएगा बंद। उसके बाद अगर आप बोलोगे कि सर वापस से शुरू करना, ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो इट्स योर, टेक अ क्विक डिसीजन एंड गेट द एनरोलमेंट। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोड मैंने आपको बता दिया। अगर आपको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ चाहिए तो आप ADAPRO लगाइए, आपको प्राइस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। So guys, let's start discussing about what 5 problems that you are going to face in your examination. Actually मैं इसको 5 भी बोलता हूँ, 10 भी बोलता हूँ, मैं आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। हर प्रॉब्लम के अंदर 2 प्रॉब्लम है और उनके अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम एक ही है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं डिजर्व करता था 80%, 90%, 95%, बट आई एम नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ मार्क्स। डू यू थिंक सो? डू यू हैव द सेम एक्सपीरियंस इन योर प्री बोर्ड्स और इन योर प्रीवियस एग्जामिनेशन, 10th का एग्जाम, 9th का एग्जाम, 11th का एग्जाम? आई एम वेरी श्योर। अरे यार ये क्वेश्चन आता था, किया नहीं यार, अरे यार होता नहीं होता है। अच्छा एग्जाम, बहुत सारी चीजें हैं, तो इन सब के बारे में ये सबसे कॉमन है। एग्जाम से बाहर निकलने के बाद अरे यार ये गलत कर दिया यार, आता हुआ क्वेश्चन छोड़ दिया, ये क्वेश्चन तो अपने को आता था बॉस, और फिर उसके बाद जिंदगी गुमसुम सी हो जाती है कुछ दिनों के लिए। आई नो मेरे साथ बहुत हुआ है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मेरे साथ नहीं होता तो मैं आपसे डिस्कस क्यों करता? आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फेलियर एंड दैट्स व्हाई आई एम टीचर, है ना, तभी तो बन पाया हूँ मैं। मुझे पता है सारी चीजें, हाउ मेनी वेज यू गाइज कैन फेल। सो गाइज मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसी कौन कौन सी गलतियां जो मैंने की हैं, बट आप मत करना प्लीज, क्योंकि ये चीजें अगर आप जान लोगे तो आप गलती नहीं करोगे। तो चिपक के रहेंगे सेशन के एंड तक, बहुत सारी चीजें और आने वाली हैं। 5 प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर एक बढ़िया आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी और बताऊंगा। तो stay connected till the end of the video. Hit the like button if you really love coming over here. Share this video with your friends and subscribe if you are new over here. Let's start. Let's discuss all about them. The first problem is the lack of confidence. And who do it? Who do it? Is it about what you study, how much you study? No. मैं आपको एक फंडा समझाता हूँ। जो नई पढ़ाई करता है ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। पता है टेंशन ही नहीं है बाबा। क्यों? मालूम है कुछ नहीं पढ़ा है, कॉन्फिडेंस है, कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं। मार्क्स, he or she is already aware of the situation. No problem. Life is all cool. Problem arises with the people who make some effort. जो पढ़ाई करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो एफर्ट डालते हैं, प्रॉब्लम उनके साथ आती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की। जो कुछ नहीं करते, हाँ बाकी आप कंप्लीट कर दो, अपना 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 सेंटेंस हो सकता है, बट जो कुछ नहीं करते उनको कॉन्फिडेंस की कभी दिक्कत नहीं। आप चेक कर लेना रियल लाइफ के अंदर भी। आई बात समझ में? अब प्रॉब्लम क्या है कि आप यू स्टडीड फॉर होल ईयर एंड इट डजंट मैटर हाउ मच यू स्टडी, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टॉक विद योरसेल्फ एंड विद यू टॉक विद अदर्स। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज lack of self confidence, or in this we are having 2 problems. Negative self talk. So before you enter into the examination you are having this, have I forgot that formula, okay let me just go through it. Have I remember, oh मैंने तो वो किया ही नहीं, अरे यार वो तो रह गया, क्या मैं एग्जाम में रिकॉल कर पाऊंगा, यार वो क्वेश्चन बहुत टफ था। सो बेसिकली यू आर रिकॉलिंग all the things that you do not know. You are having a focus only on those things, only on those things where you are weak. ऐसा तो बेटा कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर जो कहीं वीक नहीं है। मेरी भी कुछ वीकनेस है, आपकी भी कुछ वीकनेस है,
but I can become the powerful. I can become the confident if my focus is more on what I know rather than what I do not know. जैसे कि मुझे गाना गाना नहीं आता है, मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता, तो क्या बैठा रहूं? यार मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता, सचिन बनना, मुझे जो आता है मैं उस पर फोकस करूंगा. आई नो मैथ्स, मुझे पता है मैं मैथ्स में क्या हूं. समझ में आया? तो बात ये है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करेंगे. वी विल हैव कॉन्फिडेंस ऑन व्हाट वी नो. लेट्स फोकस ऑन व्हाट वी नो. बट वट वी डू इन द एग्जामिनेशन, और ये ऑटोमेटिक होगा. इसको बंद कर लेना इस रेडियो को. क्या ऑटोमेटिक होगा? कि आप बार 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 बोलोगे मुझे ये नहीं आता है, मुझे वो नहीं आता, आई डो नॉट नो दिस, आई डो नॉट नो दैट. सेकेंड थिंग, कंपेरिजन विद अदर्स. नाउ यू वॉन्टेड टू नो अबाउट योर फ्रेंड्स. क्या तुझे ये आता है जो मुझे नहीं आता है? एंड ट्रस्ट मी, he will break your confidence even more. How? Because he or she knows it. आता है. But you do not know what you know, he or she does not know. जो आपको ये नहीं पता कि जो आपको आता है वो उसको नहीं आता है, जो उसको नहीं आता है वो आपको आता है, जो आपको नहीं आता है वो उसको आता है. It's a balance of the life. So never do comparison on this. कि what do you know what I do not know, because if he or she knows, आपका कॉन्फिडेंस और टूटेगा बेटा. प्रॉब्लम नंबर 2 पर चलते हैं, सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस. अब हमारी एक दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5. हमें वो फ्लो बहुत पसंद है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. हाँ, उसके बाद फिर चलता रहेगा अपना. ये प्रॉब्लम है फ्लो. फ्लो में नहीं चलना है. अपने को क्या करना है? यू हैव टू पिक. फ्लो में चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको ईगो से कनेक्ट मत करो. मतलब फ्लो ब्रेक नहीं करना है, अपने को फ्लो मचा के रखना नहीं. दूसरा, ईगो. अब ये फ्लो ईगो कनेक्टेड है कैसे? कि क्वेश्चन नंबर 1 ओके डन, नाउ यू विल डू क्वेश्चन नंबर 2, एंड अनटिल एंड अनलेस यू विल नॉट क्रैक इट, यू कीप डूइंग इट, कीप वेस्टिंग योर टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो. यार ये सवाल मैं लगा के रहूंगा, ये अच्छा है. ईगो इज गुड बिफोर द एग्जामिनेशन, ईगो इज गुड आफ्टर द एग्जामिनेशन, बट ईगो इज बैड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. वहां बेकार है. एग्जाम से पहले करो ना, कोई दिक्कत नहीं. ये सवाल जब तक नहीं हिलेगा तब तक मैं उठूंगा नहीं, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, डिस्क्लेमर. लेकिन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इफ इट इज जस्ट रीड द क्वेश्चन. हमने एक वीडियो की थी, हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज इन द टर्म 1. आप उसको जाके देखना, वहां पर मैंने डिटेल में बात की है. यहां मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा कि इफ यू विल हैव अ क्वेश्चन नंबर 1, इफ यू कैन सॉल्व इट इमीडिएटली. इफ यू कैन नॉट सॉल्व इट, सर्कल इट. इफ यू कैन नॉट सॉल्व इट, सर्कल इट. इफ इट इज लेंथी, स्क्वायर इट. इफ इट इज लेंथी, स्क्वायर इट. Why? Because it's a lengthy one. It will take some more time. I will invest my time later. Let's solve the questions first, which are very easy to do. जो सबसे easy है करने में, पहले उनको कर लेते हैं. फिर दूसरे राउंड में उनको करने जो लेंथी है लेकिन कर सकता हूँ, और तीसरे राउंड में वो करूंगा जो मैं कर नहीं सकता हूँ लेकिन मैं करके दिखाऊंगा विद द एलिमिनेशन अप्रोच. वी हैव डिस्कस इन दैट वीडियो हाउ टू सॉल्व, हाउ टू टैकल, हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज इन टर्म 1 बाय आदित्य आर्य. आप चेक कर लेना. सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस में गड़बड़ी होगी जो आप करोगे एग्जाम के अंदर. ना चाहते हुए भी अंदर से आपका दिमाग बोलेगा नहीं इसको कर लो, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और. ये थोड़ी देर के चक्कर में मत फंसना, है ना. थोड़ी देर और, थोड़ी देर और. बेटा ये थोड़ी देर के चक्कर में गलती होती है. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मूवी चल रही है, आपको पता है होमवर्क करना है, थोड़ी देर और, पापा थोड़ी देर और देख लेता हूँ ना, क्या दिक्कत है. हाँ, फोन पे बात करें, चलो थोड़ी देर और बात कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है. फेल थोड़ी ना हो जाओगे, थोड़ी देर और कर लो ना. हाँ, समझ में आ रहा है ना. ये थोड़ी देर का चक्कर बहुत बेकार है बेटा. ये थोड़ी देर नहीं, ये होगा या नहीं होगा. टेक अ क्विक डिसीजन एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. इसके बाद आती है पुअर कैलकुलेशन. यू नो एवरीथिंग इन द पेपर, you know everything about a question, but the very first problem in the calculation is either it's too slow. आपको सब बढ़िया आता है लेकिन आपकी कैलकुलेशन इतनी स्लो है कि you end up wasting more time in solving a calculation. यानी कि आपका जो टाइम एग्जाम के अंदर जाना चाहिए था वो सोचने में जाना चाहिए था. इट शुड बी इन्वेस्टेड एट द राइट प्लेस, विच इज थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन, thinking about the concepts, thinking about the application of the concept, but you do it in
इन प्रोडक्टिव एरिया, नॉन प्रोडक्टिव एरिया, कैलकुलेशन इज नॉन प्रोडक्टिव इन योर एग्जामिनेशन, क्योंकि ये वो चीज है जिसका कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना चाहिए. इट रिमेन सेम फॉर ऑल द क्वेश्चंस. इट्स अनप्रोडक्टिव. इसमें आपको सोचना नहीं है कि कैसे करूं, क्या करूं, पता है क्या करना है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज स्लो कैलकुलेशन. यू हैव टू मेक इट स्टार्ट. अभी तक आपने काम ही नहीं किया कैलकुलेशन स्टार्ट करने पर. यू आर नॉट टेकिंग द कैलकुलेशन सीरियसली. और आप मुझे बताओगे, और आप चेक कर लो अपने एग्जाम्स के अंदर, आप 1 घंटे का पेपर आधे घंटे में कर सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन इतनी स्लो थी कि नहीं कर पाए. और इस चक्कर में आपके जो क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट थे, जो आप कर सकते थे, वो छूट गए. वाई? बिकॉज यू वेस्टेड योर टाइम इन प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव एरिया. और दूसरी चीज, आप कैलकुलेशन को गलत करते हो. तो क्या करें इसके लिए? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज सिंपल. प्रैक्टिस ऑन इट. गेट द कॉन्फिडेंस ऑन द कैलकुलेशन सेपरेटली. क्या करेंगे? 11 बजे हर रोज वीडियो निकलता है. आप देखते हो वीडियो? कहां पर निकलता है? वेदांतु कॉमर्स पे 30, 40, 50 सेकंड का वीडियो निकालता हूं मैं. ओरल कैलकुलेशन करनी है. हाँ, मैं पेपर पर लिखकर बता सकता हूं, लेकिन बात वही है ना यार. पेपर पर लिखकर बता सकता हूं, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि आप उसको सुनो, बार बार सुनो, और खुद पेपर में लिखकर सॉल्व करो. अगर हर चीज मैं आपको सर्व कर दूंगा तो व्हाट इज योर एफर्ट? वेयर इज योर एफर्ट गाइज? मैं कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट वेयर इज योर एफर्ट? आई वॉन्ट यू टू टेक योर एफर्ट्स नाउ. तो वहां पर मैं ओरली आपको बता रहा हूं, आप उसको बार बार सुनो. फायदा क्या होगा? अगर मैं लिख के दूंगा, यू विल सी ऑन वन टाइम, बट इफ आई विल स्पीक, you will listen it many times, and when you will listen it many times, it becomes stronger in your memory. That's the key concept of those 30, 40, 50 second video. एग्जाम से पहले सारे देख लेना एक बार. प्रैक्टिस करना है, बिकॉज नोइंग द थिंग इज वन थिंग एंड एग्जीक्यूशन इज वन थिंग. पता है मेहनत करने से सक्सेस मिल जाती है, पता सबको है, लेकिन करते बहुत कम लोग हैं. हाँ, आपको पता है, इफ यू विल वेक अप इन द मॉर्निंग, इट विल हैव सम बेनिफिट. यू गाइज नो डूइंग एक्सरसाइज इज हैविंग देयर ओन बेनिफिट्स. एक्सरसाइज करने के अपने फायदे हैं, पता सबको है, लेकिन करता कोई नहीं. आपको पता है कि कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए, लेकिन करना आपके हाथ में. मेरा काम आपको गाइड करना, मेरा काम बेटा टॉर्च दिखाना है कि बेटा जाओ, ये डायरेक्शन है, चले जाना उसमें. तो 11 बजे वीडियो रिलीज होती है हर रोज. आप जाकर चेक करिए, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, आई एम वेरी श्योर. और ऐसी ऐसी टेक्निक से जो आपने कभी देखी और सुनी नहीं होंगी. दैट्स माई गारंटी. ना, अगला, सब आता है, सब बढ़िया है, लेकिन फोकस नहीं है एग्जाम के अंदर. और बिकॉज ऑफ दिस यू आर रीडिंग योर क्वेश्चंस रॉन्ग, यू आर रीडिंग योर ऑप्शंस रॉन्ग. आपने ऑप्शन ही गलत रीड कर लिया. मतलब आपका आंसर आया -3, आपने रीड कर लिया 3. इंप्रेशन, आंसर -3, रीडिंग 3, टिक करके आ गए. अब ऑप्शन में दोनों हैं, 3 और -3. आपने गलत देख लिया, तो आप रीड भी गलत कर रहे हो और देख भी गलत रहे हो. दोनों प्रॉब्लम है. यानी कि आपको ऑप्शन ए दिख गया, सही है, लेकिन आपने ऑप्शन सी पर टिक कर दिया. आपने ऑप्शन ए गलत रीड कर लिया, वहां टिक कर दिया. सिंपल सा शॉर्ट बात यह है कि ऑप्शन टिक की प्रॉब्लम बहुत फेस करोगे. सो यू हैव टू वेरी कॉशियस. आपका जो अवेयरनेस है ना, उस टाइम बहुत एक्टिव हो जाना चाहिए. यू शुड बी वेरी अलर्ट वाइल टिकिंग ऑप्शन, बिकॉज इट्स अ क्रूशियल पार्ट, बिकॉज यू हैव डन एवरीथिंग परफेक्टली. सब बढ़िया हो गया है, लेकिन क्या हुआ? पंडित जी ने मंत्र शादी के नहीं, किसी और चीज के पढ़ दिए. सब बढ़िया हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया, लेकिन ये काम नहीं करना है. दिस इज अ फुलिशनेस कि आप सब अच्छा करते हो, लेकिन ऑप्शन टिक करते हो. लास्ट चीज है आपकी ये रॉन्ग फॉर्मूला, यानी कि सब बढ़िया कर रहे हो आप. अब यहां पर ये भी हो सकता है कि आप फॉर्मूला गलत लगाओ. अब यहां पर 2 चीजें होती हैं कि पहली चीज, फॉर्मूला याद ही ना आए. ये होगा एग्जाम में आपके साथ, लेकिन आपने क्या किया इस चीज के लिए? आप कर क्या रहे हो? आप सिर्फ रट रहे हो ना फॉर्मूलों को. आपने क्या किया? मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं, इफ यू वांटेड टू रिकॉल द राइट फॉर्मूला एट द राइट टाइम, यू मस्ट हैव द कनेक्शन बिटवीन ऑल द फॉर्मूला. एक कहानी के साथ याद करो. अगर नहीं बनती आप लोगों से कहानी, कोई बात नहीं, लेक्चर्स देख लेना बेटा मेरे. हर
लेक्चर के अंदर कुछ ना कुछ स्टोरी सुनाई होगी, कुछ ना कुछ कनेक्शन बिठाया होगा, कुछ ना कुछ लॉजिक बताया होगा, चेक कर लेना। तो आप या तो रिकॉल ही नहीं कर पाते हो या गलत रिकॉल करते हो। दूसरी चीज, अब आप रिकॉल तो कर ले तो फॉर्मूला आपको पता है, एबी का फॉर्मूला क्या है, लेकिन कंडीशन आपको पता है, सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला आ तो गया, लेकिन कंडीशन कब लगाना है, कहां लगाना है, वो आपने गलत रिकॉल करी, आपको पता ही नहीं है। फॉर्मूले वाले केस में ध्यान रखना, रॉन्ग रिकॉल हो सकता है, नो रिकॉल हो सकता है, यानी कि रिकॉल ही ना हो, या गलत रिकॉल हो जाएगा, या फिर रिकॉल तो सही होगा लेकिन उसमें वैल्यू कैसे पुट करनी है, कैसे उसको यूज करना है एप्लीकेशन पार्ट के लिए, कंडीशन, जैसे कि लॉग एक्स, कंडीशन क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 0, log b to the base a, फॉर एन एग्जाम्पल log b to the base a, कंडीशन क्या है, फॉर्मूला सही आ गया, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है b and a ग्रेटर देन 0 वेयर बेस a इज नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशंस, हर फॉर्मूले की कंडीशन, तो आप फॉर्मूले को याद करो और उसकी कंडीशंस को भी याद अच्छे से करना है, बट विद सम कनेक्शंस। ये सारी चीजें आपके साथ एग्जाम में होने वाली हैं। मैं फिर से रिकॉल करता हूं, पहली चीज, फॉर्मूला गलत रिकॉल हो सकता है, गलत कंडीशन के साथ रिकॉल हो सकता है, या रिकॉल ही ना हो। दूसरी चीज, आप ऑप्शंस पर गलत टिक कर सकते हो। अब ये कैसे हो सकता है, आपने आंसर सही निकाला लेकिन आपने गलत टिक कर दिया, या फिर आप ऐसा भी हो सकता है कि आप आंसर सही निकाल रहे हो लेकिन आप गलत ऑप्शन देख रहे हो, यानी कि -3 निकाला 3 पर टिक किया, या फिर आपने -3 निकाला -3 पर टिक करना है लेकिन कर ए पर दिया, गलत जगह देख रहे हो। तीसरी चीज, कैलकुलेशन पुअर हो सकती है, या तो आप गलत कैलकुलेशन करोगे या स्लो कैलकुलेशन करोगे। तीन चीज पर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि एग्जाम टाइम के अंदर आपको ज्यादा बात नहीं करनी है, ना खुद से ना दूसरों से। इस बात का ध्यान रखना, यू हैव टू बी इन द वेरी काम स्टेट। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मत पूछो किसी से तुझको आता है नहीं आता है, मत पूछो खुद से अब आता है नहीं आता, बिकॉज टाइम इज पास नाउ, देयर इज नो पॉइंट ऑफ आस्किंग दिस। पूछने से नुकसान है, फायदा कुछ भी नहीं है। ये चार चीज तो आपको मैंने बता दी, और पांचवी चीज क्या होगी आपकी, ये हमने डिस्कस कर लिया, ये हमने डिस्कस कर लिया ऑप्शन सिलेक्शंस के बारे में, क्वेश्चन का फ्लो, यानी कि आप क्वेश्चन गलत रिकॉल करो, आप क्वेश्चंस को गलत फ्लो में मत करो। डू इजिएस्ट एंड देन मॉडरेट एंड देन एडवांस, फ्लो में और ईगो के उसमें नहीं रहना है। आई होप यू लव दिस सेशन। And guys, if you are having any problem, any questions, you can let me know in the comment box. I will definitely reply you. I wish you all a very best of luck for your examination. But अगर आप चाहते हो वेदांतु will help you for this, तो पहले मैं आपको शेयर कर दूं कि what our students on Vedantu Pro have done, they really rocked with their performance. More than 60-70% students have got more than 90% marks. यानी कि अगर क्लास 100 लोगों की है तो 60 से 70 बच्चे 90 से ज़्यादा मार्क्स लेकर आए हैं। अगर मैं ओवरऑल और क्लास बात करूं तो मोर देन 80% मार्क्स लाने वाले पूरी क्लास ही है जो पूरी 80% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आती है। एंड दिस इज़ नॉट फॉर जस्ट सीबीएसई, इट्स फॉर सीबीएसई, आईसीएसई एंड द स्टेट बोर्ड्स। वी आर हैविंग मैनी अमेजिंग ऑफर फॉर यू। मैं आपको समझाता हूं इस स्लाइड के बाद। आपके पास अब सीखने के लिए बहुत सारे मौके हैं, यूट्यूब डेफिनेटली, बट अगर आप चाहते हो और बेनिफिट करना, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, दीज डेज वी आर डूइंग 60, 70, 80 क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स क्लास। 50 से 80 क्वेश्चंस के बीच में हर रोज एमसीक्यू लगा रहे हैं। अगर ये बेनिफिट आप चाहते हो, असाइनमेंट्स कर रहे हैं हम लोग, टेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, सो दैट वी रियली रॉक इन अवर एग्जामिनेशन। आपके ऊपर है कि आप इस बेनिफिट को लेना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। टर्म 1 की सेपरेट प्रिपरेशन, अब कोई बात नहीं, टर्म 1 का टाइम निकल गया, ऑलमोस्ट 1 महीना बचा है, लेकिन टर्म 1 की प्रिपरेशन को बूस्ट कर लो और टर्म 2 की टाइम से स्टार्ट करके जुड़ जाओ साथ में। अब देर मत करो, अब आंखें खोल लो बेटा। तो टर्म 1 टर्म 2 दोनों की प्रिपरेशन होगी वेदांतु के ऊपर, अपने बेनिफिट्स है यहाँ पर। यू विल बी हैविंग असाइनमेंट्स, लॉट्स ऑफ क्विजेज, वी विल बी डीलिंग विद ऑल द 4 सब्जेक्ट। एवरी क्लास विल हैव द 2 टीचर्स, जहाँ पर आपके पास होंगे एक मास्टर टीचर, एक क्लास टीचर, विच आई कॉल एज इनविजिबल हीरो, हु विल टेक केयर ऑफ योर डाउट पर्सनली 1-to-1। तो अगर आपको सबके सामने पूछने में शर्म आती है कि सर मैं डाउट पूछूं नहीं पूछूं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपके पास एक पर्सनल टीचर है, इससे बढ़िया फैसिलिटी क्या हो सकती है। हमारे टाइम पे नहीं थी, लेकिन आपके टाइम पर ये फैसिलिटी है। इस ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी।
This is how the Wavebook platform look like, which is super duper smooth, no lag. It's completely speed. आप कहीं से भी अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, किसी भी जगह से इसको एक्सेस कर सकते हो. बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेट कनेक्शन की, बस इतना सा. यानी आप अपने मोबाइल फ़ोन की कनेक्शन से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो. बच्चे ज्वाइन करते हैं, बहुत बढ़िया उनको आउटपुट मिलता है कि गांव गांव से, शहर शहर से, चाहे जो भी कनेक्टिविटी हो, वी आर रीचिंग एवरीवेयर. हर घर वेदांतु. तो ये एक चीज़ है जो हमें लेकर चलनी है. साथ में आप लोग का सपोर्ट बिल्कुल लगेगा. महाराष्ट्र कॉमर्स, पिछले साल हमने वेदांतु कॉमर्स लॉन्च किया था यूट्यूब पर और वेदांतु प्रो पर, और इस साल विद इन 1 ईयर वी हैव लॉन्च्ड. अभी 1 साल हुआ नहीं है, लेकिन विद इन 1 ईयर वी हैव लॉन्च्ड महाराष्ट्र कॉमर्स विद योर लव एंड सपोर्ट. तो गाइज ऐसी सपोर्ट करते रहो. और भी हरियाणा बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये बोर्ड, वो बोर्ड, बहुत सारी चीज़ें और लेकर आएंगे. आप जो बोलोगे हम लोग करते जाएंगे. सीए का कोर्स, ये कोर्स, वो कोर्स, टीए की तैयारी के लिए कोर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं that we can give to you people. We are having a lot of teachers. We are having a very good team who can help you at every step of your life. आपकी लाइफ के हर स्टेप पर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपके साथ खड़े हैं. तो महाराष्ट्र कॉमर्स लॉन्च हुआ है 11 अक्टूबर को. इसके अलावा कॉमर्स का कॉमन बैच, अगर आप कॉमन बैच में जाना चाहते हो तो 4 अक्टूबर को वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड अ क्रैश कोर्स. इसके अलावा we are launching a new long term batch on 25th of October grade 11th and 8th of November for grade 12th. आप इसमें एनरोल चाहो तो कर सकते हो. और अभी ऑफर भी चल रहा है, ये दशहरा ऑफर आप बोल सकते हो इसको. What is that offer? That now you are having a 73% का ऑफ ऑन क्रैश कोर्स, जो मैंने आपको बताया. 11th वालों के लिए 73% का ऑफ रहेगा. 12th वालों के लिए 55% का ऑफ रहेगा. ठीक है. 11th वालों के लिए 73% का ऑफ रहेगा. 2700 रुपीज़ का ये ऑफर मिल जाएगा. और 12th वालों के लिए 55% का ऑफ मिलेगा. क्रैश कोर्स की बात कर रहा हूं बेटा. लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म की बात, अगर आप लॉन्ग टर्म में एनरोल, लॉन्ग टर्म का फायदा क्या है? टर्म 1 की प्रिपरेशन तो होगी ही होगी, टर्म 2 की प्रिपरेशन भी टाइम से स्टार्ट हो जाएगी. अब आपके ऊपर है क्रैश कोर्स या लॉन्ग टर्म. इट्स जो कम्प्लीटली योर चॉइस. या फिर यूट्यूब पर ही रहना है, ये आपको डिसाइड करना है. तो जनरल का या जनरल की यात्रा करनी है या थर्ड एसी की यात्रा करनी है, फर्स्ट, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस बेटा. वी विल ट्राई फ्रॉम आवर साइड टू टेक यू टू द डेस्टिनेशन. हम आपको लेकर जाएंगे, ये हम लोग वादा करते हैं. साथ हम साथ में रहेंगे. साथ हमारा रहेगा हमेशा. ठीक है. तो उसमें कोई दुराय नहीं है. ये मत सोचना कि YouTube पर पढ़ने पर सिलेक्शन नहीं होता है, हो जाता है. लेकिन अब आपको देखना है जर्नी कैसी करनी है आपकी. पहुंचेंगे तो हम सब डेस्टिनेशन पर, लेकिन कैसे पहुंचना चाहते हो ये आपके ऊपर है. इसके अलावा 11th 12th दोनों का प्राइसिंग में आपको इन शॉर्ट समझाऊंगा. 22.5 रुपये पर डे. यस, यू हर्ड इट राइट. 22.5 रुपीज़ पर डे पर सब्जेक्ट. ये आपका टिकट है जर्नी का, स्मूथ जर्नी का, फर्स्ट एसी का, थर्ड एसी का टिकट. 22.5 रुपीज़ पर डे पर सब्जेक्ट. एनरोल करोगे तो ये आपको पड़ेगा. ठीक है. सो गाइज, अच्छा एक और, अरे यार ये तो मैं बताना भूल गया. 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में, मतलब अभी आज से लेकर अगले 5 दिनों तक, 15, 16, 17, 18, 19, for the next 5 days including the today, we are having 50% off on all the courses. सारे courses पर 50% का ऑफ आप लोगों को मिल रहा है वेदांतु एजुकेशन फेस्ट के अंदर. So guys, you can start learning with your favorite master teacher and fall in love with your subjects. It can be boring, but we will make sure that you will fall in love with your subject. So link for the enrollment is given in the description box. Use the code ADPRO. इसको लगाओगे तो आपको और ऑफ मिल जाएगा. इसके अलावा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, गिव अवे. So guys, on 15th of October, that is today, we are having results of JEE and NEET aspirants. तो आज आप लोगों का
वी आर गोइंग टू डू ऑन द रिजल्ट डे, ठीक है। रिजल्ट डे 15-16 जो भी रहेगा, रिजल्ट डे पर 12 घंटे का कॉन्टिन्यूस लाइव करने वाले हैं हम लोग जेडबलई नीट और नीट चैनल्स पर। आपको क्या करना है फिर, यू हैव टू गिव, यू हैव टू स्प्रेड पॉजिटिविटी। कैसे पॉजिटिविटी आप स्प्रेड करोगे, बाय सेंडिंग योर विशेस टू द एस्पिरेंट्स। आपके जो फेलो हैं, आपके जो साथी हैं, जो किसी और कोर्स में हैं लेकिन आपके साथी तो है ना, क्या पता कभी किसी मोड़ पर मिल जाए, है ना। तो आपके अपने साथियों को आपको विश करना है। हाँ, आप नहीं मिले उन लोगों से, लेकिन हाँ उसको विश तो कर सकते हैं कि विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स। आप उनको मोटिवेट कर सकते हो कि यार रिजल्ट कैसा भी आए लेकिन यू आर गोइंग टू रॉक। जो भी आप बात बोल सकते हो उनके लिए, जिन लोगों का रिजल्ट आने वाला है, दैट विल बी रियली रियली ग्रेट गाइज। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गिव, what you are going to do, record a video in your mobile phone or in your system, put it as YT short। एक YT short का वीडियो बनाओ मोर देन 15 सेकेंड्स, या इंस्टाग्राम रील बनाओ मोर देन 15 सेकेंड, 15 सेकेंड से ज़्यादा का, पोस्टेड ओवर देयर। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है फॉर्म की, इस लिंक पर क्लिक करोगे तो उस फॉर्म में आपको फिलअप कर देना है, आपके वीडियो की डिटेल जो आपकी लिंक है वो उसमें पेश कर देनी है। इसके अलावा नंबर ऑफ व्यूज़ के हिसाब से नंबर ऑफ व्यूज़ डिवाइड बाई 10, उतने आपको रुपए गिव अवे में मिल जाएंगे। सो आई होप यू नो हाउ टू क्रिएट द YT शॉट। देयर इज अ प्लस बटन इन योर यूट्यूब फर्स्ट पेज, एंड इंस्टाग्राम रील कैसे बनाना है, देयर इज अ प्लस साइन एट द टॉप राइट ऑफ द इंस्टाग्राम मेन पेज। वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर आपको रील का ऑप्शन मिल जाएगा। वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। ये आपका संडे को होने वाला है 7 बजे और वेडनेसडे को 8 बजे। एनीवन हु इज फ्रॉम grade 4 to 13 कैन गिव दिस टेस्ट। इट्स completely free of cost, so there is no barrier for you. It's completely free and you will be getting this guaranteed scholarship on giving this test. It's an online test, so you can give from anywhere, again no barrier. The link is given in the description box. अगर आप लिखना चाहते हो, it's easy, vsat.vedantu.com. So stay tuned guys, I will come live again at 3:30 p.m. I do come 3 times in a day, once at 11 a.m. in the morning with a short video for your speed calculation, at 3:30 p.m. with more such videos, academic, non-academic, which are going to help you in your board examination, and at 6:30 with NCERT solution. तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आई होप यू रियली लव टू कमिंग ओवर हियर, आई होप यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस सेशन, and do not forget to join the Telegram group where we are posting all these videos and content over there. See you all in the next class. Do not forget to show your love, share these videos with your friends. It might help, it might not help you, but it might help them. It might help you, it might them also. तो हो सकता है आपको मदद करे ना करे, लेकिन आपके दोस्त को शायद जरूर करेगी। तो शेयर करने में कोई बुराई नहीं, शेयरिंग इज केयरिंग। सब्सक्राइब करेंगे इफ यू आर न्यू ओवर हियर। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।